डू यू नो द स्ट्रेटेजी? क्या आपको पता है कि 80 में 80 स्कोर करना एक स्ट्रेटेजी है, एक प्लान है। इफ़ यू नो द प्लान तो 80 में 80 स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें जानना है कि वो स्ट्रेटेजी क्या है। अगर वो स्ट्रेटेजी इफ़ यू नो तो देन देयर इज नो फियर, देयर इज नो स्ट्रेस टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 from the beginning till the last. You stay with me, follow me, and I assure you will have a clear concept. So in this video I will tell that in what part, how many marks are there, and how to prepare for that, and how to write up also, and finally how will you score 80 out of 80. You may say that 100 out of 100. It's a challenge, but it's not a difficult one. You are a great student, you are a talented student, and you can do it. You are to do it, right? So let us see that 20 marks internal assessment for the total year. That means for the entire years, what teachers are doing the practice like ASL, like other activities, discussion, extempore speech, as well as classwork practice, copy correction, evaluation, this and that. That depends on the teachers. And I know that if you are an obedient student of that particular teacher, they will give you that part. And then 80 marks. Basically 80 marks. देखो, English paper is divided into three sections. First section is for unseen passage sections. Unseen passage section, and then grammar sections. You can second part, grammar plus writing, advanced writing and grammar part, and third section, that is literature part. Now here 20 marks questions. There will be two passages. Okay, first passage contains 10 marks and one question. That means each question contains 1 mark. That means 10 plus 1. Okay, second passage again the same type. Now what type of question will come here? Very short type questions, one word answer, MCQ type questions, vocabulary, grammar, okay, similar meanings, etc. So this is not a difficult part at all. Okay, now come back to that, the next part, grammar. So there are 5 part of grammar, like one is tense, modal, determinants, subject verb agreement and narrations. ये 5 topics है. From these 5 topics you will be asked 10 questions, amalgamated questions, okay, short type questions. Okay, now कैसे प्रिपेयर करोगे हम बताएंगे फिर. और फिर राइटिंग पार्ट से फॉर्मल लेटर है. फॉर्मल लेटर में यू कैन राइट टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर, और कंप्लेंट लेटर, और सम अदर इंक्वायरी लेटर्स. Okay, and then second question of writing, that is analytical paragraph. Means you are to write a paragraph on the basis of data, on the basis of table, on the basis of some other graph, pie chart, etc. So on the basis of given data, you are to write a paragraph. It's not a difficult one. So 5 marks for paragraph, 5 marks for letter. Okay, so 10 marks here for writing, 10 marks here for grammar. 20 marks is over. 40 marks. Remaining 40 marks will be from literature. देखो 10th क्लास में लिटरेचर बुक 2 है. क्या है? एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट है और एक बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट. आ जाओ. सबसे पहला क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का बनेगा वो है एक्सट्रैक्ट, यानी कि किसी प्रोज से या फिर ड्रामा से. ड्रामा देखो फर्स्ट स्लाइड में ड्रामा है, एज वेल एज दैट मींस फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से भी जो है ड्रामा है. अच्छा, ड्रामा से और प्रोज से, स्टोरीज से, किसी भी एक चैप्टर से, किसी भी 2 चैप्टर से 2 एक्सट्रैक्ट उठाया जाएगा. दैट मींस सम लाइन, सम पैराग्राफ, ओके, शॉर्ट पैराग्राफ, और वहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके, सो यानी कि दिस एक्सट्रैक्ट विल बी आस्क्ड फ्रॉम बोथ द बुक्स, फर्स्ट फ्लाइट एज वेल एज फुटप्रिंट्स विदाउट फिट. आ जाओ. ये क्वेश्चन के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होती है, राइट. राइटर का नाम पूछा जाएगा, उसमें कौन कैरेक्टर कैसे बताए हैं, ठीक है, और उसमें सपोज की दैट कोई लाइन में आपका फिगर ऑफ स्पीच है या नहीं, वोकैबुलरी है, तो दिस एंड दैट. इट्स वेरी इजियर वंस, बट यू आर टू प्रिपेयर वेल. आई एम टेलिंग यू how will you prepare. And then second extract is from poems only. Again this contains 5 marks. Okay, so इस क्वेश्चन में भी 5 मार्क्स है. और अगेन वही पोइट कौन है, जैसे कि आपका द बॉल पोएम है, दैट मींस और टाइगर इन द जू है, फिर फायर एंड आइस है, ये सारे पोएम्स है और यहाँ से आप प्रिपेयर करोगे. ठीक है, तो पोएम से वन एक क्वेश्चन है, दैट इज कंटेनिंग 5 मार्क्स, 1 मार्क ईच. Then there comes next question, short type of questions, जो फर्स्ट स्लाइड बुक से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा. 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन का आंसर है मार्क्स से 3 मार्क्स, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करना है, 12 मार्क्स यू विल स्कोर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमिलर टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे वर्ड लिमिट है 30 to 40 वर्ड्स लिमिट. शॉर्ट क्वेश्चन जितनी है 30 to 40 वर्ड्स में वर्ड लिमिट है. अच्छा, फुटप्रिंट विदाउट फिट से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट मींस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, और 2 क्वेश्चन आपको करना है. 3 मार्क्स है एक क्वेश्चन आंसर के लिए, आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेगा. आ जाओ. अब एक लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि आपकी 2 बुक है. कौन सी 2 बुक है? एक फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट से
फ्रॉम एंटायर चैप्टर्स। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। तो ये 100 to 120 वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन करना है, दो में से एक क्वेश्चन करना है। अच्छा, दो बुक से दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया जाएगा। जब आप एक क्वेश्चन करेंगे, आप वर्ड लिमिट कितनी है, इतनी है 100 to 120 वर्ड्स, आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्लाइड के क्वेश्चन में 6 मार्क्स है एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन में 6 मार्क्स है। टोटल कितना काउंट करो आप, देखो 40 मार्क्स हो गया। यानी कि देखो ये जो 20 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, 80 मार्क है। और ये आपका जो 20 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट लाइक ALS, okay, assessment on listening and speaking, as well as some internal other activities that depends on your teachers, school authorities, etc. Now there comes a great questions that sir, how you can prepare? कैसे आप प्रिपेयर करोगे? आपके दैट कमिंग हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो अभी एक चीज तो करो, देखो सबसे पहले आंसर पैसेज में आप उसको करो कि टिक द क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन उठाओ और उसको ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेटेड वर्ड्स। देखो आंशिन पैसेज में, आई एश्योर यू, आंशिन पैसेज में मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। एग्जामिनर्स मार्क डिडक्ट नहीं करते हैं। आपका एबिलिटी चेक किया जाता है कि दैट मींस आर यू एबल टू कैच द आंसर और नॉट, पिक अप द आंसर और नॉट, ठीक है। तो आपकी एबिलिटी इतनी चेक करते हैं कि वेदर यू आर एबल टू पिक अप द वर्ड्स, रिलेटेड वर्ड्स, आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर चेक नहीं होती है, लिटरेरी कैलिबर चेक नहीं होती है, ओनली आपको दिखाया जाता है कि हाँ। तो पहले क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन से यू इस तरह जो है ढूंढो, आप जहां पे मार्क है उसको अंडरलाइन करो, आगे भागो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसी तरह दो पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगी। फिर दैट मींस दो अनसीन पैसेज विल बी सॉल्व्ड। आ जाओ, कम बैक टू दैट द ग्रामर पार्ट में। तो देखो टोटल ग्रिप होनी चाहिए। टेंस आप क्लास 3rd से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास 3rd 4th 6th से, हाँ 7th 9th हर क्लास में आप टेंस पढ़े हो। तो ये टेंस एज वेल एज मॉडल्स, डिटर्मिनर्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पढ़ते हुए आए हो, लेकिन फिर भी हम आपको इस क्लिप के साथ जो है वो देंगे। दैट मींस एंटायर पार्ट ग्रिप और विद डिटेल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज प्रैक्टिस मटेरियल का रिलेटेड वीडियोज हम इस यहाँ पे पिन कर देंगे। तो फिर आपके लिए डिफिकल्टीज नहीं होगा। करना क्या है, देखो आप मान के चलो कि हर एक पार्ट से दो दो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। टेंस से भी मान लो कि दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आ जाओ। सपोज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया और फिर उस स्ट्रक्चर में एक वर्ड गलत दे दिया। अब वहां पे नीचे क्वेश्चन दिया है कि दैट मींस फाइंड द एरर और फाइंड द करेक्शंस। अब उस सेंटेंस में, उस टेंस वाली सेंटेंस में कहीं आपको देखना है कि ग्रामर पार्ट कहाँ एरर है, ठीक है। तो एरर जहां पे है उसको अंडरलाइन करो और वहां पे जो करेक्टेड वर्ड है उसको फिल करो। आ जाओ। फिर आपको जो है ये पूछा जाएगा दैट मींस टेंस में एक सेंटेंस लिख दिया गया और वहां पे ब्लैंक दे दिया गया। अब वो ब्लैंक की जगह पे विच फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड उसको फिल करना है, ठीक है। आ जाओ। अब आया फिर डिटर्मिनर्स में बहुत सारे डिटर्मिनर्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्वांटिफायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो दैट मींस यहाँ आपको फिल करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दैट मींस कोई क्वेश्चन में ब्लैंक दे दिया जाएगा या फिर किसी क्वेश्चन में दैट मींस वो दिया जा सकता है, दैट मींस एमसीक्यू टाइप दिया जा सकता है। एक स्टेटमेंट दे दिया गया और एक अंडरलाइन वर्ड दे दिया गया, ठीक है। अब वो अंडरलाइन वर्ड के नीचे जो है दे दिया गया कि इन ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। फॉर एग्जांपल मे, शुड, कुड, माइट दे दिया। अब वहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट आपका कंफर्मेशन कहाँ होनी चाहिए, कमांड कहाँ होनी चाहिए, ग्रामर पे फुल ग्रिप होनी चाहिए। नेक्स्ट इज दैट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी फॉर्मूला सेम है। नरेशन और यहाँ से मान के चलो आप 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चन बनने वाला है। नरेशन से कभी कभी 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर करो। आ जाओ, कम बैक टू दिस पॉइंट। अब ये लिटरेचर कैसे तैयार करोगे। लिटरेचर देखो, सबसे पहले कोई एक स्टोरी उठाने से पहले, स्टोरी पढ़ने से पहले बेटा देखो उसका सबसे पहले देखो स्टोरी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टोरी। स्टोरी की बेसिक कंसेप्ट आपको आपकी कमांड में होनी चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट बोले तो स्टोरी का नाम, राइटर का नाम, उस स्टोरी में हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, ठीक है। देखो 3 स्टेप फॉर्मूला है कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट इज 3 स्टेप फॉर्मूला। एक फर्स्ट स्टेप में आती है फिर दैट मींस राइटर नेम एंड टाइटल। सेकंड स्टेप इज फॉर व्हाट, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। थर्ड स्टेप है उस स्टोरी में हुआ क्या है, बिगिनिंग टू लास्ट, एक थोड़ा सा नॉलेज, आई मीन टू से दैट उस स्टोरी को आप किनार कर दो। देन गो बैक टू दैट नेक्स्ट स्टोरी। फिर अगेन शुरू करो कि राइटर कौन है, चैप्टर का नाम क्या है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर कौन है और फिर उसका मेन इंसिडेंट क्या है, जान लो। यानी कि इस तरह आप जो है आप स्टडी करोगे ना, तो फिर मान लो कि आपको करना है, लेकिन चैप्टर को, एंटायर चैप्टर को रीड करना मस्ट है। जब एंटायर चैप्टर को रीड करने के बाद उस चैप्टर का प्रिपरेशन कैसे करोगे। सपोज ये एंटायर चैप्टर है, उसका एक A4 साइज पेपर में उसका वो बनाओ, फिर एक शॉर्ट जिससे कहते हैं कि शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले लो आप। तो कैसे करोगे, कभी कभी हम जो है ये टोटल ब्लैक बोर्ड में
टोटल चैप्टर पढ़ाने से पहले उसका मेन पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, एक ही पेज में एक ही राइट अप कर देते हैं, उसको स्क्रीनशॉट बोलते हैं, माइंड मैप बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, A4 साइज पेपर लो, ठीक है, मान लो कॉपी लो, आप पहले राइटर का नाम लिखो, टाइटल लिखो, स्टोरी का नाम लिखो, फिर उसके बाद उसमें जो मेन कैरेक्टर्स है उन लोगों का नाम लिखो। अच्छा, और एक चीज आप जो है टोटल स्टोरी को कॉन्फिडेंस में रख सकते हो, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर ने क्या क्या इंसिडेंट किया है, क्या क्या एक्टिविटीज किया है, उसको राइट अप करो। अच्छा, इस स्टोरी से और जो मेन इंसिडेंट, जो वैल्यू पॉइंट्स है, क्या क्या चीज़ है उसको नोट करो, ठीक है। और जो अदर कैरेक्टर्स है, मतलब यू नो हॉट क्वेश्चंस, हाँ हॉट क्वेश्चन यू कैन से दैट, यू नो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें नोट करो। अभी आपको क्या नहीं करना है, डिटेल आपको प्रिपेयर नहीं करना है, यू आर प्रिपेयरिंग एक चैप्टर इन वन पेज। नाउ टोटल इंसिडेंट को, अब इंसिडेंट को पैराग्राफ वाइज नहीं, दैट मींस यू नो यहाँ से एक होता है ना पैराग्राफ, ऐसे नहीं, इंसिडेंट लिख करके, दैट मींस यू नो द मेन एक्टिविटी ऑफ द चैप्टर लिख करके उसका मेन पॉइंट 3-4 पॉइंट में उसको स्टोरी को खत्म कर दो। नाउ अब जब भी कभी उस चैप्टर को देखना चाहोगे तो फिर क्या होगा, इन वन शॉट, इन वन पेज यू हैव डन इट। आ जाओ, रिलेटेड पोएम कैसे पढ़ोगे आप, पोएम, ठीक है। तो पोएम, अच्छा हर पोएम का मीनिंग जो है थोड़ा सा डिफरेंट होती है, राइट। अगेन द सेम फॉर्मूला, टाइटल देन पोएट का नाम, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें कि इंसिडेंट क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट इंसिडेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर इन द जू, ठीक है, लेस्ली नॉरिस पोएट है, टाइटल दे दो आप, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे टाइगर्स की 2 लाइफ है, एक है वन लाइफ इज इन द प्रिजन और यू कैन से दैट यू नो केज, अनदर लाइफ इज इन द, कहाँ पे, जंगल में। अब यहाँ पे प्रिजन लाइफ में या फिर जो है केज के अंदर टाइगर की एक्टिविटीज क्या क्या है नोट करो, ठीक है, उसका मूड मेंटेलिटी कैसा है नोट करो, जंगल में वो क्या क्या करता है नोट करो, उसमें उसका एक्टिविटीज, उसका ग्लो, चेहरे की मेंटेलिटी, दैट मींस यू नो उसका माइंडसेट क्या है उसको नोट करो। अब आ जाओ, मीन्स एक टेबल की तरह बना लो आप, हर स्टैंजा से आप यू कैन पुट दैट यू नो फर्स्ट स्टैंजा, ये फर्स्ट स्टैंजा की लाइफ कहाँ है, केज में है या फिर जंगल में है, सेकंड स्टैंजा की लाइफ केज में है या जंगल में है, आप इस तरह मैनेज कर लो। इट्स ए वंडरफुल स्टाइल ऑफ व्हाट, गेटिंग द कमांड ओवर पर्टिकुलर चैप्टर। अरे बाबू, इस तरह प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर दैट मींस यू नो कैसा भी क्वेश्चन बनेगा you will be able to answer it very dashing way. Now come back to the next point. हर एक पोएम में से एक वो बना लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच लाइक सिमिली, मेटाफर, एलिटरेशंस, ओनोमेटोपोइया, ऑक्सीमोरन एटसेट्रा। अब किस लाइन में, किस वर्ड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अंडरलाइन कर दो। मान लो एक पोएम में 1 से 2 फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, ठीक है, तो वो लाइन को उठा दो और उसके आगे लिख दो कि ये मेटाफर है या एलिटरेशन है। आई फील इट्स ए वंडरफुल वे। आप क्या करोगे, पोएम, मान लो कि आप पोएम का वो कर रहे हो, क्या पोएम, मान लो पोएम, ठीक है। अब वो टाइटल लिखो, टाइटल, पोएट कौन है वो लिखो, ओके, एंड देन यू नो द मेन एक्टिविटीज लिख लो, मेन एक्टिविटीज, और उसमें दैट मींस यू नो मेन एक्टिविटीज कैसे, ऐसे, ठीक है। मान लो अभी टाइगर वाला जो है, टाइगर इन द जू वाला लिख रहे हो आप, तो दैट मींस यू नो केज लाइफ और यू नो जंगल लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट दे दो आप, आ जाओ। इस पोएम में यहाँ पे मान लो कि फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, अब यहाँ पे एलिटरेशंस, अब आगे ये वर्ड लिख दो, सपोज सिमिली है, आगे वो वर्ड लिख दो, सेंटेंस लिख दो, बस। तो ये हो गया क्या आपका वन, मान लो कि वन पोएम। सो दिस वे यू विल प्रिपेयर। अब आपको नेक्स्ट टाइम हम आपको कैसे राइट अप करना है, राइट अप करने की स्टाइल क्या है, राइट अप करोगे, ठीक है। तो ये जो राइट अप करने जाओगे आप, ये आपका पैसेज है, दैट मींस यू नो आंसर शीट है, ठीक है, आंसर शीट है, ये आंसर शीट है। सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर दो, दैट मींस यू नो क्या है, अनसीन पार्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे नोट कर दो, दैट मींस यू नो अगर आप जब ये वाला पार्ट करोगे तो एडवांस राइटिंग एंड ग्रामर पार्ट, ओके, ये ऐसे मिडिल में नोट करके अंडरलाइन कर दो। फिर आगे चलोगे आप तो फिर जो है क्या कर दो, यहाँ पे लिटरेचर पार्ट, ओके। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे दो, जस्ट सपोज क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो क्वेश्चन नंबर देने की जो है पीछे जो है थोड़ी सी केयरिंग टच है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से देखो, यहाँ से लाइट अप करना शुरू करो, ओके, 2-1 लाइन जो भी क्वेश्चन है आंसर मिलेगा, फिर ये अटैच करके लिखना इस तरह, ठीक है, that gives a very good look। अब हर एक क्वेश्चन हर एक आंसर राइट अप करने के बाद एक लाइन आप स्पेस छोड़ दो। जब स्पेस छोड़ोगे आप, फिर आप जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन इस तरह लिखो। देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर सपोज कि क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे आपने दे दिया, तो ये एक गोला है और एक ये गोला है, तो ये अट्रैक्टिव वन है। आपको आंसर राइटिंग में अट्रैक्शन क्रिएट करनी है, क्योंकि आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन अगर अट्रैक्टेड है तो फिर क्या होगी, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे भी हो जाते हैं कुछ लोग, देखिए बहुत स्पीड वे में, मतलब किसी टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे यही चीज बता रहा हूँ कि दैट मींस पहले से आपको प्रिपेयर करने हैं। कैसे, स्टोरी बाय स्टोरी, पोएम बाय पोएम, इन वन पेज टोटल इन्फॉर्मेशन यू कैन राइट अप।
इसके बाद जस्ट बिफोर एग्जाम्स ओनली यू आर टू डू दैट इन राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। आपको स्पीड अप करनी है, तो इट इज ए स्टेप बाय स्टेप। हर एक आंसर के बाद एक लाइन स्पेस छोड़ देनी है, ठीक है, और हर लाइन को मार्जिनल लाइन से अटैच करके लिखना है ताकि कहीं आपका जो है अनवांटेड स्पेस ना छूट जाए, यानी कि आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन। और आई होप प्रिपेयर करो कैसे, मैंने बताया। आंसर राइट अप करो कैसे, मैंने बताया। अब एक बार एक ग्लांस में, एट ए ग्लांस, किस जगह से कौन सी क्वेश्चन पूछी जाएगी और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट।